नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज की खास पेशकश न्यूज नाउ में। आपके साथ मैं हूं नवीन पांडे। न्यूज नाउ में आज सबसे पहले बात बांग्लादेश में पैदा हुए हालात की, जहां 4 बार की प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इस बीच पड़ोसी मुल्क के हालात पर देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद के दोनों सदनों को जानकारी दी है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार के साथ फैसले में साथ खड़े रहने का भरोसा दिया है। इसके बाद दूसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे इंडिया गठबंधन ने जीएसटी को लेकर क्यों संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं न्यूज नाउ। बांग्लादेश में हिंसा का दौर अभी भी जारी है। शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं। पड़ोसी देश में भड़की हिंसा को लेकर भारत सरकार लगातार चिंता जता रही है। मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में बांग्लादेश हिंसा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। विदेश मंत्री ने शेख हसीना की भारत में मौजूदगी और बांग्लादेश में रह रहे भारतीयों को लेकर अहम जानकारी दी। विदेश मंत्री एस जयशंकर का लोकसभा में बयान। बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक उथल पुथल और प्रदर्शन के बीच शेख हसीना पीएम पद से इस्तीफा देने के बाद 5 अगस्त को भारत पहुंची, जहां उन्हें हिंडन एयरबेस पर लैंडिंग की अनुमति दी गई थी। ऐसे में बांग्लादेश में चल रहे घटनाक्रम और शेख हसीना से जुड़े मुद्दे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संसद में बयान दिया है। लोकसभा में बांग्लादेश के हालात पर विदेश मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त को कर्फ्यू के बावजूद प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका में इकट्ठा हुए। सुरक्षा प्रतिष्ठान के नेताओं के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा देने का फैसला कर लिया था। इस बीच उन्होंने बहुत कम समय में अस्थायी रूप से भारत आने की अनुमति मांगी। हमें बांग्लादेश के अधिकारियों से उड़ान की मंजूरी के लिए भी एक अनुरोध मिला। उन्होंने बताया कि वह कल शाम दिल्ली पहुंची थी। I rise to apprise this august house of certain recent developments pertaining to Bangladesh. As honorable members are aware, India-Bangladesh relations have been exceptionally close for many decades over many governments. Concern about recent violence and instability there is shared across the political spectrum. Speaker Sir, since the election in January 2024, there has been considerable tension, deep divides, and growing polarization in Bangladesh politics. This underlying foundation aggravated a student agitation that started in June this year. There was growing violence, including attacks on public buildings and infrastructure, as well as traffic and rail obstruction. The violence continued through the month of July. Throughout this period, we repeatedly counseled restraint and urged that the situation be diffused through dialogue. Similar urgings were made to various political parties, political forces with whom we were in touch. Speaker Sir, despite the Supreme Court judgment on 21 July, there was no let-up in the public agitation. Various decisions and actions taken thereafter only exacerbated the situation. The agitation at this stage coalesced around a one-point agenda, that is that Prime Minister Sheikh Hasina should step down. On 4th August, events took a very serious turn. Attacks on police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations. The full extent of this is still not clear. Speaker Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently decided to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India.
We simultaneously received a request for flight clearance from the Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. Speaker sir, the situation in Bangladesh is still evolving. विदेश मंत्री एस जयशंकर का राज्यसभा में बयान। इससे पहले राज्यसभा में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, बांग्लादेश में जुलाई से हिंसा हो रही है। 21 जुलाई को वहां आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। उसके बावजूद विरोध प्रदर्शन होते रहे। 4 अगस्त को हालात बिगड़े और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर हमले किए, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया। 5 अगस्त को कर्फ्यू लगाया गया। उसके बावजूद सड़कों पर मार्च निकाला गया। हिंसा में हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। हमारी सरकार भारतीय समुदाय के संपर्क में है और अल्पसंख्यकों की स्थिति पर नजर रख रही है। Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. The bulk of the students, however, have already returned to India in the month of July on the advice of the High Commission. In terms of our diplomatic presence, in addition to the High Commission in Dhaka, we have assistant High Commissions in Chittagong, Rajshahi, Khulna and Sylhet. It is our expectation that the host government will provide the required security protection for these establishments. We look forward to their normal functioning once the situation stabilizes. Chairman, sir, we are also monitoring the situation with regard to the status of minorities. There are reports of initiatives by various groups and organizations to ensure their protection and well-being. We welcome that, but will naturally remain deeply concerned till law and order is visibly restored. भारत में राजनीतिक गलियारों में चर्चा, वहीं बांग्लादेश के हालात पर भारत में कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। देश की संसद से लेकर राजनीतिक गलियारों में पड़ोसी मुल्क में हो रही हिंसा की चर्चा की जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसले ऐसे होते हैं जिसमें पक्ष विपक्ष सबको एक साथ खड़े होने की आवश्यकता होती है। विदेश मंत्री जी ने अपना बयान जो सदन में रखा, उस पर हम लोगों ने कोई क्वेरी नहीं की, ये मानते हुए कि देश की सरकार और विदेश मंत्री जो हालात के बारे में बता रहे हैं वो एक सही जानकारी दे रहे होंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल हमने अपनी पार्टी की ओर से पूछा, मीडिया के माध्यम से इस सरकार से मैं पूछना चाहता हूं, आज आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पे बुलाई, बांग्लादेश की परिस्थितियों पे बुलाई, उसमें आपने आम आदमी पार्टी जो एक राष्ट्रीय दल है उसको आपने नहीं बुलाया। 3 सांसद हमारे लोकसभा में हैं, 10 सांसद राज्यसभा में हैं, आपने हमको नहीं बुलाया। ये क्या प्रधानमंत्री जी के पसंद और नापसंद पे तय होगा कि कौन राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर होने वाली बैठकों में आएगा, कौन नहीं आएगा? या क्या सरकार के मंशा पर तय होगा, जिसको वो पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं कि वो आएगा ऐसे मसलों पर या नहीं आएगा? तो ये सवाल है। मैं समझता हूं इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम भी वहां पर जाते तो कुछ सार्थक सुझाव देते सरकार को, लेकिन ये ठीक नहीं किया। ये गलत परंपरा की शुरुआत आज भाजपा की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने की है। कभी ऐसा नहीं हुआ। पहले भी मणिपुर के सवाल पे या अफगानिस्तान के सवाल पे या जब भी कोई ऐसे बड़े मसले रहे हैं तो जो भी बैठक बुलाई गई उसमें आम आदमी पार्टी को बुलाया गया। पहली बार ऐसा हुआ। तो क्या अब इस नीति में भी कोई सरकार बदलाव लेके आ रही है कि भाई
जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करेंगे उसको नहीं बुलाएंगे। उन्होंने वहाँ की स्थिति जो है उसका एक विवरण दिया है और उसमें भी बोला है कि वहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं उनकी सुरक्षा के लिए सरकार बात कर रही है। मुझे लगता है उस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत है, क्योंकि अभी इस्कॉन मंदिर पे भी हमला हुआ है, तो वो एक गंभीर बात है। तो वहाँ जो माइनॉरिटीज हैं, वो हिंदू, क्रिश्चियन, सिख जो भी हैं, और 18,000 जो भारतीय हैं, उनकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। वो सरकार को पहले उसको देखना चाहिए, गंभीरता से उसको पूरी तरह से वहाँ पे हमें ताकत लगा के उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। इस तरह की कोई चीज, मंदिरों को तोड़ना, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार जो है, नई सरकार, वो जो है हसीना की सरकार तो एक फ्रेंडली सरकार थी, वो सरकार कैसी होगी किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और दूसरे बहुत बिल्कुल सही बात है उनकी कि संवेदनशील मुद्दा, इसलिए हम लोग भी कोई बढ़ चढ़ के उस पर नहीं बोल रहे हैं और हमें सरकार के ऊपर ही छोड़ रहे हैं कि सरकार किसी तरह से वहाँ शांति की स्थापना करने में सहयोग करे और हमारे बांग्लादेश के रिश्ते अच्छे रहने चाहिए। बांग्लादेश के बदलाव भारत को चिंतित करने वाले हैं। यद्यपि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था काफी समृद्ध है, लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से विद्रोह हुआ है और जिन ताकतों के हाथ में सत्ता आई है, वो खतरनाक लोग। इसमें ऑपोजिशन द्वारा भी काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके आप क्या कहेंगे? विपक्ष के सवाल बेमतलब, बेनतीजा हैं। भारत की जो समृद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था है, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इनसे भिन्न है। मैंने पहले भी कहा था और दोबारा दोहरा रहा हूं, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे एमईए जयशंकर जी पूरे घटनाक्रम पर बीते कई हफ्तों से जो चल रहा था उस पर नजर बनाए रखे होंगे। उसका एक ब्लूप्रिंट भी होगा। हमारा मानना है कि अक्सर लोग सोशल मीडिया के दौर में त्वरित प्रतिक्रिया दे देते हैं कि कोटा के कारण, ऐसा नहीं है। ये मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर है। मैं ये बात पूरे इसके साथ कहता हूँ, बहुत सारी चीजें थी। एक एक्सट्रीम फिलॉसफी थी, कोटा पे कोर्ट का जजमेंट था। 2, तीसरा एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि एक डेमोक्रेसी के लिए जो एस्पिरेशन थे वो एड्रेस नहीं हुआ था। बीता चुनाव आप याद करिए। तो अगर इस पूरे आर्किटेक्चर को हम समझे, उसकी परिणति हुई है कि शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा। ऐसी छवियां भी हमने देखी थी जो कुछ वर्ष पूर्व अंदाजा नहीं कर सकते थे कि शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु की प्रतिमा जिस प्रकार तोड़ी जा रही थी। तो मेरा मानना है कि इस मल्टी लेयर्ड आर्किटेक्चर को समझते हुए हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, हम उसके साथ हैं। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया की अब राजनीतिक स्थिति जो है उसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे इमीडिएट नेबरहुड में ये हुआ है और मैं चाहूंगा कि हमें सावधानी के साथ साथ एक विश्लेषण भी बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारी एक बहुत बड़ी सीमा बांग्लादेश से लगती है और ऐतिहासिकता भी है, रिश्तों की भी ऐतिहासिकता है। दूसरे नेबर के मुकाबले बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते हमेशा कमोबेश एक बेहतर स्वरूप लेके रखा है इसने। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि छद्म लोकतंत्र की क्या परिणति हो सकती है, उसका भी ये नतीजा है। जाहिर तौर पर मैं दोबारा कहूंगा कि हमारी सरकार जो भी निर्णय लेगी, आज ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, अगर मिनिस्टर साहब दोनों जगह स्टेटमेंट देंगे तो जो हमारे मन में दुविधाएं हैं, उन दुविधाओं को भी हम उनके समक्ष रख करके उसका निराकरण करेंगे। यदि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा असुरक्षित वहां के हिंदू भाई हैं। लगभग 13 मिलियन के आसपास हिंदू वहां पे, 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू वहां पे हैं। और जिस तरीके से कल हमारे मंदिरों को जलाया गया, काली मंदिर जलाया गया, उसके बाद इस्कॉन मंदिर को जलाया गया, 2 जो वहां के हिंदू काउंसलर थे उनकी हत्या कर दी गई और बाकी हिंदुओं का सरेआम लिंचिंग हो रही है। लगभग 27 जिले ऐसे हैं जहां पर हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। तो ऐसे माहौल में जब वहां का पूरा हिंदू समाज असुरक्षित है तो निश्चित तौर पर यह पूरा हिंदुस्तान के हिंदुओं को वेदना दे रहा है, हमको पीड़ा हो रही है। ऐसे में हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेश के उत्पातियों को सख्त वार्निंग दी जानी चाहिए। अगर हमारे हिंदुओं का आगे कुछ भी हुआ तो सरकार को किसी भी हद तक जाना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री एक ताकतवर नेता हैं, पूरी दुनिया में उनकी धाक है। ऐसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक कठोर भूमिका लेते हुए बांग्लादेश के हिंदू कैसे सुरक्षित रहें, इस प्रकार का एक कार्रवाई करें।
आपने एक सवाल उठाया कि विपक्षी जो है ताकतें इसके पीछे है, चाहे वो चाइना हो, यूरोप हो या अमेरिका हो, ऐसी कौन सी जो है चीजें जो चाइना जो है बांग्लादेश में कर रहा है? देखिए, विपक्षी नहीं, विदेशी ताकतें हैं। चाइना के साथ तो शेख हसीना का झगड़ा लंबे समय से चल रहा है। चीन बहुत दिनों से शेख हसीना से कुछ करवाना चाहता था और शेख हसीना झुकने को तैयार नहीं थी। ऐसे में चीन ने ही जो एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उसके तहत लंबे समय से वहां के बांग्लादेशी जो स्टूडेंट्स हैं उनको चीन में बुला के उनको ट्रेनिंग देना, उनका दिमाग में जहर भरना और उनको सरकार के खिलाफ भड़का के आखिरकार ये नौबत पैदा कर दी। तो चीन तो सरेआम है और बाकी इस प्रकार के उत्पातों में हमेशा अमेरिका और यूरोप भी रहता है। तो बांग्लादेश में विदेशी ताकतों ने एक चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। एक समझ लीजिए कि आर्थिक तौर पर एक समृद्धि की तरफ बढ़ रहा बांग्लादेश, जिसको अचानक तबाही में डाल दिया। बांग्लादेश का जो जीडीपी है और पर कैपिटा इनकम ये सब बहुत तेजी से बढ़ रहा था और पूरी दुनिया के लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे थे कि बांग्लादेश की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो पूरे बांग्लादेश की इकोनॉमी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए, इस प्रकार का षड्यंत्र रचा और वहां के उत्पाती उस षड्यंत्र का शिकार हो गए, उसमें शामिल हो गए और उसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में कल उन्होंने उत्पात मचाया और शेख हसीना को अपना पद छोड़ के, अपना देश छोड़ करके भागना पड़ा वहां के प्रधानमंत्री को। देखिए, बांग्लादेश की जो स्थिति है वो एक हम लोगों को पड़ोसी देश होने के नाते और कभी इसी देश से अलग हुआ एक देश और वहाँ की स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं है। जो दृश्य आ रहे हैं वो लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ चुकी हैं। वहाँ अराजकता ही अराजकता है। वहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत संकट में हैं। वहाँ के माइनॉरिटीज़ के रूप में हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, जो पारसी हैं, ये सभी लोग बहुत ही तकलीफ़ में हैं। और हमें आज गनीमत ये है कि सदन में हमारे विदेश मंत्री जयशंकर जी ने पूरी रिपोर्ट रखी है और मुझे एक बात का संतोष है कि विपक्ष ने इस पे जो एक सकारात्मक रुख रखा है कि हम पूरे ऐसे मुद्दों पे देश के साथ हैं, ये बहुत अच्छी बात हुई है। और दूसरी चीज़, हमारा विश्वास है कि ना सिर्फ नज़र रहेगी बल्कि ऐसे अवांछनीय तत्वों का क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे निदान हो सकता है, इसके लिए भी भारत आगे कदम उठाएगा। बांग्लादेश में कैसे छिड़ गया गृह युद्ध। दरअसल बांग्लादेश में पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बीच शेख हसीना की प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। हसीना ने सोमवार को प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और उसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। शेख हसीना फिलहाल भारत में है। वो यहाँ से लंदन या फिनलैंड की शरण ले सकती है। बांग्लादेश के मौजूदा हालात के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन इसमें जमात इस्लामी की भूमिका भी अहम है। जमात इस्लामी क्या है? जमात इस्लामी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। इसकी छात्र शाखा का नाम इस्लामी छात्र शिविर है। हाल ही बांग्लादेश सरकार ने इस संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया था। क्यों लगा प्रतिबंध? बांग्लादेश में तत्कालीन हसीना सरकार ने आतंकवाद रोधी कानून के तहत जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि जमात इस्लामी बांग्लादेश में आंदोलन को भड़का रही है। जमात इस्लामी के प्रमुख डॉक्टर शफीकुर रहमान ने सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की थी। बांग्लादेश की स्वतंत्रता का किया था विरोध। जमात इस्लामी 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की स्वतंत्रता के विरोध में उतर आया था। इसने मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों का पक्ष लिया था। इसी संगठन पर प्रतिबंध का एक ये भी कारण है। बांग्लादेश हिंसा में 100 से ज्यादा मौतें। बांग्लादेश में हसीना सरकार की विदाई के बाद हुई हिंसा में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद वो देश छोड़कर चली गई। हसीना के देश छोड़कर जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने मंगलवार को संसद में मकर द्वार के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी वापस लेने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुए। गठबंधन के नेताओं ने एक सुर में कहा, स्वास्थ्य
और जीवन बीमा पर जीएसटी नहीं लगाई जानी चाहिए। सरकार का यह फैसला मानवीय आस्था के प्रति सम्मान नहीं दिखाता है। जीएसटी पर इंडिया ब्लॉक का प्रदर्शन। जीवन और चिकित्सा बीमा प्रीमियम से जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर इंडिया गठबंधन ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। संसद के मकरद्वार पर किए गए प्रदर्शन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत, राजद की राज्यसभा सांसद मीसा भारती के अलावा विपक्ष के कई नेता मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी सांसदों ने एक सुर में कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य बीमा और दवाइयों पर जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है, जबकि सरकार के वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। सरकार के अंदर भी इस बात के लिए बहुत विरोध है। पूरा विपक्ष आज इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। ये सरकार है जो कफन टैक्स लगाती है। अब एक आदमी बीमार, एक्सीडेंट हुआ है, वो जीवन से संघर्ष कर रहा है और आप क्या कर रहे हैं, उस पर भी जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। तो एक पीड़ित आदमी के साथ इस तरह लूट मचाना गलत है। ये हम ही नहीं कह रहे, इनके मंत्रि परिषद में भी मतभेद है। गडकरी साहब ने खुद लिखा है कि इसे वापस लेना चाहिए। तो हम तो जनहित में एक मुद्दा उठा रहे हैं कि लूट मत करो, कफन टैक्स मत लगाओ। बंगाल की सबसे पहले ये मांग उठाई कि दवा दारू पर और इलाज के जो इस्तेमाल किया जाता है वो सब सामग्री पर जो जीएसटी लगाया है, पहले से उन्होंने कहा कि इस बजट में उसको हटाना चाहिए, लेकिन हमने देखा कि बजट में उसको नहीं हटाया गया और इससे मध्यम वर्ग और गरीब लोगों को बहुत बुरा हाल होता है जब उन्होंने कोई बीमारी के लिए इलाज के लिए जाते हैं। तो इतना जीएसटी लागू होने से मरीज इलाज कैसे करेगा और इंश्योरेंस नहीं रहने से उसको जान खतरा में होता है। इसीलिए हम मांग कर रहे हैं कि ये जीएसटी उठाया जाए और मेडिकल इंश्योरेंस से भी, लाइफ इंश्योरेंस से भी। एक अलग क्वेश्चन है, बांग्लादेश में जो परिश्रम की कंडीशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आपको बताएंगे। पार्टी मीटिंग में हाँ, तो वो जब हाउस में होगा, हाउस में जब होगा तो ये एमईए बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे। जीएसटी को लेकर प्रोटेस्ट है। जिस तरह से जीएसटी से सारे छोटे छोटे व्यापारी, कारोबारी, उद्योगपति सब तंग है, तो इसलिए उसके विरोध में सरकार ने कोई जो है इसमें राहत नहीं दी है और हर आदमी परेशान है जीएसटी से, उसको लेके प्रोटेस्ट। सर, आप लोगों का मांग भी है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसको 18% जीएसटी से बाहर रखा जाए, इसको लेकर? क्योंकि आज के इलाज करना सबसे मुश्किल काम है, गरीब आदमी तो इलाज करा ही नहीं पाता है, इसलिए हेल्थ सेक्टर में भी जो बहुत ज़्यादा जीएसटी बढ़ा दी है उसको कम करना चाहिए। इंडिया अलायंस यूनाइटेड 15 दलों के लोग यहाँ आज अभी, हाँ, सारे लोग प्रदर्शन करके यहाँ पे जो है अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि अभी भी फाइनेंस बिल में गुंजाइश है कि कुछ करें। देखिए, मोदी सरकार बिना सोच समझ के कुछ भी एक तानाशाही ये के तहत कुछ भी लागू कर देती है। नोटबंदी कर दिया, जीएसटी लागू कर दिया। अब हेल्थ सेक्टर में अगर इस तरह से 18% जीएसटी होगा तो लोग जो मिडिल क्लास खास तौर पर बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हो रहा है, क्योंकि वो मेडिकल इंश्योरेंस करने से भी अब डर रही है। लेकिन वो लोग सबसे पहले मेडिकल इंश्योरेंस ही करते थे पहले, लेकिन 80% देख के उनको लग रहा है कि किसी और तरफ हम लोग अपने पैसे को सुरक्षित रखें। तो ये देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय है, इसे अविलंब खत्म करना चाहिए। इसीलिए आज संपूर्ण विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने यहाँ पर प्रोटेस्ट दिखाया और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि हेल्थ सेक्टर में जीएसटी 18% से कम ना किया जाए। मैम, जिस तरह से हिंदुस्तान में लोग जीवन बीमा कराते हैं या मेडिक्लेम का भी अब यह है कि मेडिक्लेम भी लोग लेते हैं, तो आपको क्या लगता है कितने हद तक लोग प्रभावित होंगे? अब लोग लेना ही बंद कर देंगे। जब इतना जीएसटी देना होगा तो लोग देंगे क्यों? जैसे लोग गोल्ड खरीद के छुपा के रख देते हैं कि चलो कभी इमरजेंसी में काम आएगा, अब इस तरह की चीज़ों में लोग इन्वेस्ट करेंगे। ज़मीन खरीद के रख देंगे, लेकिन वो तत्काल नहीं ना मिलता है। ये है कि आप कभी भी बीमार पड़े तो तुरंत आपको ये गारंटी रहती थी कि मेडिक्लेम वगैरह से आपको तुरंत मिल जाएगा। अब तो बहुत मुसीबत में पड़ जाएगी देश की जनता। आप सिर्फ अपर क्लास को देख रहे हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को देख के सारे पॉलिसीज बना रहे हैं। ये बहुत ही गलत है, क्योंकि ये जो जनता के टैक्स के पैसे और ये सब है, इसको लेके आप चंद पूंजीपतियों को और अमीर बना रहे हैं।
ये टैक्स के पैसे उनके खाते में जा रहे हैं, वो पैसे लेकर दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं, उनसे आप वसूली नहीं करते और छोटे छोटे लोगों को जो पेट काट काट के अपने भविष्य के लिए प्लान करते हैं। आप देखिए ना, जो पैसे बैंकों में जमा थे उसके कितने परसेंट चले गए बाहर विदेशों में, बड़े पूंजीपति लोन लेके चले गए। अब उसका असर तो उन पर पड़ रहा है ना, जो लोग अपना भविष्य देखकर पैसे उन्होंने बैंक में रखा था, अब उसका इंटरेस्ट इतना कम हो गया है कि वो अपना दवा तक नहीं खरीद पा रहे हैं। तो ये सोचना चाहिए, ये सरकार ज्यादा दिन चलेगी नहीं, क्योंकि जनता त्रस्त आ चुकी है। देखिए, वित्त मंत्री महोदया ने यानी कि सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस पे, दवाइयों पे जो जीएसटी लगा रखी है उससे आम जनमानस बहुत परेशान है और नितिन गडकरी जी भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। तो सरकार के अंदर भी इस बात पे विरोध है। पूरा विपक्ष इंडिया ब्लॉक आज इस चीज के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा है और सरकार को, आम आदमी को राहत देनी पड़ेगी। We're trying to point out is that you can't really impose GST on something as essential as life insurance. The government has announced a policy of life insurance for all and health insurance for all by 2047, and now they're taxing in such a way that there will be no possibility of being able to do that. We already, by the way, have the highest out-of-pocket expenses in health, and now you also want to pay 18% GST. It's not fair to people. दरअसल आपको बता दें कि जब जीएसटी लागू हुआ था तो बीमा पर 15% टैक्स लगता था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद 1 जुलाई 2017 से 18% टैक्स वसूला जा रहा है। टैक्स दर में 3% की इस बढ़ोतरी से इंश्योरेंस पॉलिसियों के प्रीमियम पर सीधा असर पड़ा है, जिससे प्रीमियम की कीमतें बढ़ गयी। वहीं मेडिकल और जीवन बीमा पर जीएसटी हटाने या कम करने की मांग के बीच सरकार ने सोमवार को संसद को बताया कि पिछले 3 वित्तीय वर्षों के दौरान इस क्षेत्र में लगाए गए टैक्स से सरकार को 21,256 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 2023-24 के दौरान 8,263 करोड़ रुपए सरकार के खाते में आए हैं। स्पेशल रिपोर्ट एनबी न्यूज। तो न्यूज नाउ में आज इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।